الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب ذی وقار، آج ہمارا عقیدے کا پیریڈ ہے اور جمعرات ہے آج، اور جمعرات کو ہم لوگ عقیدہ اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں۔ کچھ مسائل رات کے رہ گئے تھے، اس حوالے سے بیان کر دوں تھوڑا سا، یا پہلے آج کا سبق پڑھا کے پھر آگے چلوں؟ چلیں آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا، کسی دوسرے کو ثواب پہنچانا۔ اب اس میں ہمارے ذہن میں اسپیشلی ہمارے مرحومین آتے ہیں کہ بھئی مرحومین کو ثواب پہنچانا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے 311 میں۔ ایصال اور ثواب دونوں یہ لفظ ہیں، مشہور ہیں ہمارے ہاں۔ آپ کو میں کچھ ایسی احادیث دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے جانے اس سے پہلے ایک کوشچن پوچھ لوں آپ سے، پلیز پھر میں نے بس ایک اسمال سا کوشچن ہے۔ میں جو آپ کو نام بھیجتی ہوں نا، محمد عمر اور حسینہ عمر، جن کے لیے 4,000، تو وہ اصل میں جو ہے نا، وہ میرے بابا اور مما ہے نا، جن کو میں ان کے نام آپ کو بھیج دیتی، تو وہ ہو جاتا ہے نا، ان کا نام بھی میں نے دیکھا آتا ہے ادھر جب۔ ہاں جی، ویسے بھی نا یہ مسئلہ جو ہے، جو حدیث شریف ہے نا، حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والدین کا نام لیا جاتا ہے آلریڈی۔ جو بندہ، آلرائٹ، ہاں، وہ ٹھیک۔ فرشتے تو بندے کا نام بھی اور بندے کے والدین کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ہم تو چونکہ ظاہری طور پہ بھی اپنے تسلی کے لیے اور موٹیویشن کے لیے ہم لوگ ویسے بھی کسی اچھے انسان کے جو ہے وہ تھرو، ہم اس کے ذریعے سے، وسیلے سے اپنا سلام ویسے بھی ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ نام ہم لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھا حسینہ بیٹی ہے شاید، تو میں تو نہیں نہیں، عمر کا تمہیں پتہ نہیں میری لگا۔ مما کا نام ہے حسینہ عمر۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جزاک۔ پہنچ جائے گا انشاءاللہ، وہ تو ہے، اچھی بات ہے، سارے ثواب ہی تو ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا بیان ہے۔ میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیان بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس میں کہتے کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب یہ ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کے ایک دکھ درد میں شریک رہتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اور بھی بہت ساری جو ہے نا آپ نے صفات بیان کی ہیں۔ تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی حاجت میں رہتے ہیں۔ جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کے حاجت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام کام سیدھے کرتا رہتا ہے، یعنی اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں، مجموعہ ہے۔ دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے، 3 مرتبہ، الدین النصیحہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول اور اس کی کتاب اور اہل اسلام اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں دنیا میں بھی، ویسے بھی ہم لوگ مادی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اب حدیث کریمہ میں جو آیا ہے کہ جو 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ خود حضور علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق 2 مینڈے سینگ والے
चित बकरे, हाँ, खसी किए हुए या बकरे लाए गए। आपने दस्त मुबारक से उन्हें ज़िबा फरमाया और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाही ये एक मेरी तरफ से है और एक मेरी उम्मत में से उसकी तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। अंदाज़ा करें रसूल पाक ने हमारे लिए कुर्बानी की जो बाद में पैदा होने वाले हैं। ठीक है जी। ये भी एक है कि अपने अमल का सवाब दूसरे को पहुंचा सकते हैं। इसमें दलील जो हमें मिलती है ना, ये सही हदीस शरीफ है। अब इसका इसमें क्या है कि अपने अमल का जो सवाब है वो दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो रसूल पाक ने कुर्बानी दो की। अब हम भी उम्मती भी दो कुर्बानी करते हैं। जो जो जितने नेक लोग हैं वो हमेशा दो कुर्बानियां करते हैं, एक अपने लिए करते हैं और एक रसूलुल्लाह की तरफ से करते हैं। तो वो हम लोग मुसलसल करते रहते हैं। एक हदीस शरीफ में ये भी वारिद है कि रसूलुल्लाह ने खुद बनफ्स नफीस बकरी ज़िबा फरमाते जब भी, तो उसके टुकड़े सैयदा खदीजा के सहेलियों में तकसीम फरमाया करते थे। हज़रत साद की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आपने हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, साद की यानी मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया पानी का। उन्होंने कुआं खोदा और ऐलान कर दिया उसके ऊपर कि ये हाजिही ले उम्मे सादिन, ये साद की माँ के लिए है। आज तक ये कुआं है, ये उम्मे साद, बेर उम्मे साद ये भी मौजूद है। तो ये हजरत साद बिन अबी वकास ने जो ये जो सदका किया था अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक ने कबूल किया इखलास के से, और वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना, एक बहुत बड़ा अकीदा है। और बहुत इससे हमें तसल्ली बहुत मिलती है, दिली तसल्ली मिलती है जब हम अपने वालिदैन को कुछ बख्शते हैं, अपने मरहूमीन की कुछ मदद करते हैं और उनके कुछ इसाले सवाब करते हैं, सदका खैरात करते हैं उनके लिए। तो हमारे दिल को अपने अपने दिल को सुकून मिलता है। उनको तो जो सवाब मिलता है वो मिलता ही है ना। तो कलमा गो गुमराह फिरकों में से एक फिरका गुजरा है जिसका नाम था मुअतजिला। अगरचे उसका इस फिरके का आज नाम और निशान तक नहीं है, लेकिन उस ग्रोह के बहुत से अकायद को बाद में पैदा होने वाले गुमराह फिरकों ने आपस में तकसीम कर लिया है। तो मुअतजिला के नज़दीक जिंदा के इसाले सवाब से मुर्दों को कोई फायदा नहीं होता, और ये अकीदा आज वहाबियों ने ले लिया हुआ है और बात बात पर मुसलमान अहले सुन्नत को बिदअती और मुशरिक ठहराते हैं। औरत और जाहिलों पर उनका जादू जल्दी चढ़ जाता है। लिहाजा अपना दीन और मजहब अजीज है तो उनकी किताबें न पढ़ो, न उनके वाज नसीहत देखो। सारा वो जो मौलवी है ना इनका, लाल रुमाल वाला, वो मैं देख रहा था आज अपने माँ बाप की कब्रों पे गया था, आज मैं उसकी वीडियो आई मेरे सामने। तो कब्रें जो उनकी वालिदैन की जो माँ की और बाप की कब्र है ना, वो ऐसे ना एक ऐसे ना खड्डा सा जो ना ऐसे वो है एक गड़ा सा जो ना बन गए हैं कब्रें। और ये गधा कह रहा है कि ये देखो ना, ये सारी कब्रें ऐसी हैं जैसे सऊदीया में होती हैं, जैसे कि सुन्नत के मुताबिक कब्रें हो गई हैं। ये बड़ा अच्छा है। और वैसे लग रहा था जैसे सारे मोटरसाइकिलें सारी वहीं से गुजरती हैं, उनके ऊपर से गुजरती है। तो ऐसी औलाद अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का यही हाल होता है। अपने बच्चों को अकीदा सिखाएं, कुरान सिखाएं, उनको अच्छा दीन सिखाएं, खूबसूरत दीन सिखाएं, कि वो बाद में कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहें, आपके लिए भी अपने लिए भी कम से कम फायदा तो होगा उनको। तो इसाले सवाब यानी कुरान मजीद या दुरूद शरीफ या कलमा तैयबा या नमाज और रोज़ा, हज, ज़कात, ग़रज़ हर किस्म की माली या बदनी इबादत और हर अमल नेक, चाहे फ़र्ज हो नफल हो, उसका सवाब मुर्दों को पहुंचा सकते हैं। इन सब को पहुंचेगा, उन सब को पहुंचेगा, और इसके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी, बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा पूरा मिलेगा। ये नहीं कि ये सवाब तकसीम होकर टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, बल्कि उम्मीद यह है कि इस सवाब पहुंचाने वाले के लिए इन सब के मजमुए के बराबर मिलेगा, खुद इसको भी मिलेगा। नाबालिग ने कुछ पढ़कर या कुछ नेक अमल करके उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाया तो इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि फर्ज का सवाब मुर्दों को पहुंचा दिया तो अपने पास क्या रह गया, इसलिए कि सवाब पहुंचाने से तो अपने पास कुछ नहीं रह गया। नहीं, बल्कि इस इसाले सवाब से फर्ज इसके जिम्मे साकित हो गया है और ये अदायगी फर्ज से फारिग हो गया है, फिर दोबारा इनको अदा न किया जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को दुनिया से जाने के बाद जो सवाब कुरान मजीद की तिलावत या कलमा शरीफ या दुरूद शरीफ की क़िरात और दूसरे आमाल सालिहा का तन्हा या खाने कपड़े वगैरह के साथ पहुंचाया जाता है, उर्फ में उसको फातिहा कहते हैं। इसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और औलिया कराम को जो इसाले सवाब करते हैं उसे ताज़ीमन नज़र व नियाज कहते हैं।
वैसे तो हम इसाले सवाब भी कहते हैं, उसकी बहुत सारे नाम हैं, तो उसमें से नज़र व नियाज कहते हैं उसको ताज़ीम के लिए, वैसे भी हम लोग कहते हैं हज़रत साहब, हुजूर साहब, ये अदब के लिए नाम लिए जाते हैं। तो जैसे हम लोग गिफ्ट होता है, हम कहते हैं भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, बच्चों को भी कहते हैं गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन जब किसी को हमने किसी बड़े को कहना हो तो कहते हैं आपके लिए हदिया लाए हैं। हदिया अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि हदिया और जो गिफ्ट है एक ही बात है। तोहफा भी कह सकते हैं उसको, तोहफा का लफ्ज़ भी ठीक है, लेकिन हम लोग अदब के लिए उसको हदिया बोलते हैं, आपके लिए हदिया लाए। तो इस तरह होता है। नज़र भी कहते हैं उसको, जो साले सवाब होता है उसको नज़र बोलते हैं। बादशाहों के दरबार में जब कुछ चीज़ पेश करते थे ना, तो उसको नज़र कहते थे, नज़र। आपकी नज़र करूं मैं कुछ, आपकी नज़र करूं, यानी कि वो ये तोहफा होता था कि आपकी नज़र कोई शेर तोहफा में दूं आपको, इस तरह आप बोलते थे। तो हम जब भी अपने बड़ों के लिए कुछ भेजते हैं तो साथ में कहते हैं ये क्या है, नज़र, आपकी नज़र कर रहा हूँ। ईसाल सवाब का तरीका पहले देख लें, और फिर उसके बाद में मैं आपको इस पे अहादीस सुनाता हूँ। ज़रा देखिएगा, आयात भी बहुत सारी है लेकिन मैं आपको अहादीस सुनाता हूँ। पहले ज़रा तरीका सुन लें ताकि आपको ना सुन्नियों का तरीका पता लग जाए। इसाले सवाब का तरीका यह है कि अव्वल 3 या जायद बार दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी एक बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितना भी पढ़ सकते हैं, 41 बार, 100 बार, और हम तो हजारों लाखों भी पढ़ देते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए सबसे पहले। उसकी वजह है ना, मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि दुरूद शरीफ के बगैर, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी इबादत, और एक में आता है दुआ, वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है हमारी दुआएं, हम जाती नहीं है। एक तो ये है, और ये दुआ जो है ये मगजुल इबादत है ना, ये मुखल इबादा है, ये मगज है इबादत का। तो इसीलिए हमें जो है इसको दुरूद शरीफ में लपेट के, यानी पहले और आखिर में पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है जी। इसी तरह हज़रत अली शरीफ खुदा ने फरमाया है कि दुआएं जो है वो महजूब, इबादत महजूब रहती है, महजूब, हिजाब में रहती हैं, जब तक कि रसूलुल्लाह और उनकी आल पर दुरूद न पढ़ा जाए। तो दुरूद शरीफ हम हमेशा पढ़ते होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सूरह फातिहा कितनी दफ़ा, एक दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 11 दफ़ा। अब सूरह फातिहा का सवाब क्या है, हदीस शरीफ में आता है कि सूरह फातिहा का सवाब जो है वो 2 तिहाई है। 2 तिहाई का मतलब क्या, कि वो 20 पारों का सवाब है। सूरह फातिहा एक दफ़ा जो पढ़ेगा उसको सवाब जो मिलेगा, सवाब कुरान मजीद के 20 पारों का सवाब मिलेगा। अच्छा, आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान मजीद में अफजल तरीन जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। तौहीद की आयत है खूबसूरत, और रिसालत की भी है, शफाअत की आयत भी है। अच्छा, और 3 या 5 या 7 बार क्या है, सूरह इखलास। अब सूरह इखलास की क्या फजीलत बताई हदीस पाक में, कि ये 10 पारों के बराबर है, 10 पारों के, इसका सवाब बराबर है। तो हम एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते हैं बस, और फिर आखिर में फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं, अब देखिए ये इतना सही होता है, ठीक है। अब यानी आप कुरान कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आप चाहे आप जितना भी अमल कर सकते हैं ना, हमारे यहाँ तो ख़त्म भी होते रहते हैं, मुसलसल कलमा पढ़ते हैं, 75,000 बार पढ़ते हैं, 1,00,000 पढ़ते होते हैं, जितना भी पढ़ सकते हैं। तो जितना भी कुछ आप पढ़ते हैं कुरान मजीद का ख़त्म करते हैं, जब भी आप कुरान मजीद पढ़ा करें, जब भी कुछ पढ़ा करें, तो अपने अपने रिश्तेदारों को भेजा करें, इसाले सवाब किया कर दिया करें, आपके सवाब में कमी नहीं आएगी। उनको भेजा क्या रहे। आप दुआ कैसे करेंगे, इलाही मेरे इस पढ़ने, और अगर खाना कपड़ा वगैरह वो भी कोई रखा हुआ है सदका खैरात के लिए ना, तो कहें कि इसके पढ़ने और इन चीज़ों के देने पर जो सवाब मुझे अता हो, उसे मेरे अमल के लायक ना देकर अपने कर्म के लायक अता फरमा। अपने मैंने तो सिर्फ आदत पूरी की है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन तू अपनी शान के लायक इसको कबूल फरमा। पहले तो है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तू कबूल फरमा ये इबादत सारी हमारी। जब वो कबूल फरमाए, उससे मेरी तरफ से फुला वलीउल्लाह, जैसे कि आप कहें कि हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, चूंकि हमारे जितने भी सलासिल हैं ना, हमारे जो तो रूहानियत के तरीकत के सलासिल हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है ना हमारे निगाह में वो होते हैं कि हम उनको इसाले सवाब करें। लेकिन मैं जैसे करता हूँ, हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम सबसे पहले कहते हैं कि या अल्लाह, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हदिया तोहफतन हदीयतन पेश करते हैं, आजिजन हम पेश कर रहे हैं, हमसे कबूल फरमा और उनको पहुंचा। इसके बाद कहते हैं रसूलुल्लाह के वसीले से 1,24,000 पैगंबर, कम वेश पैगंबर
उनके सहाबा कराम, उनके घर वालों को इसका सिलसिला सवाब करते हैं, तो उनको पहुँचा ए रब करीम। रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहहारात, इनकी आल औलाद, सहाबा कराम, ताबीईन, तबे ताबीईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, सबको इसका सवाब बख्शते हैं। या अल्लाह तू उनको पहुँचा और उनकी अरवाह को खुश फरमा। ख़ासुल ख़ास इसका सवाब इस मैयत का, जो भी आपके करीबी रिश्तेदार अगर हों, तो मेरे वालिदैन को इसका सवाब पहुँचा, हाजी साहिबान को, हमारे घर के फ़लाँ 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 बंदे को इसका सवाब पहुँचा, उनकी रूह को खुश फरमा, उनको राहतें दे इसके बदले में। और इस तरह की ना दुआएँ करते होते हैं, जिसे इन्होंने दुआएँ लिखी हुई हैं कि हमारे आबा व अजदाद को, इनकी इनकी औलाद मशाइख़ कराम को, औलाद अमजद और सैयद आदम अलैहिस्सलाम से रोज़ क़यामत तक जितने मुसलमान हों, जितने गुज़रे हों या मौजूद हैं या क़यामत तक होंगे, सबको इसका सवाब पहुँचा। इसके बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेर दे, या जो तरीका और अल्फाज चाहें इस्तेमाल करें, यही मतलब में कोई ऐसा है नहीं। बस ठीक है जी, यह आपने यानी ये तरीक़ेकार हमें सिखाया गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, और ये जो बाज़ किताबों में लिखा है कि खाना सामने रखकर हाथ उठाकर कुरान करीम वगैरह पढ़कर बख्शा सवाब बख्शना हिंदुओं का तरीका है, ये सिर्फ मुहम्मल और लायानी बात ही नहीं, बल्कि वहाबियों की बेहूदगी और गुमराहियों का अमली नमूना है। वरना हिंदुओं में न क़यामत का अकीदा है, न सवाब और अजाब के कायल हैं, न उनके यहाँ ईसाले सवाब होता है। फिर कहाँ कुरान अज़ीम की तिलावत और कहाँ वेदों की पढ़न, या ला हौला वला कुव्वत, ऐसी बातें करते रहते हैं। हज़रत शाह इमदादुल्लाह मक्की जो है ना, ये हमारे अहले सुन्नत के इमाम है, दोनों मकातब फ़िक्र के। ठीक है जी। तो वो सबसे बड़े पीर है, यानी इनके हमारे उसके अहले सुन्नत के। यहाँ उन्होंने एक किताब लिखा है फैसला हफ्स मसाइल के, बड़ा खूबसूरत रिसाला है। वो फरमाते हैं कि सल्फ में, यानी कि बुजुर्गों में, जो हमारे कुरूनी ऊला की बात कर रहे हैं, मैं तो ये आदत थी कि मसलन खाना पकाकर मिस्कीन को खिला दो और दिल से ईसाब सवाब की नीयत कर लो। मुताखिरीन यानी कि बाद में आने वालों उलमा ने इसमें किसी को ख्याल आया कि जैसे नमाज में नीयत हर चंद दिल से काफ़ी होती है, मगर मुआफ़िक़त क़ल्ब और लिसान, ज़ुबान से कह लेने में क्या होता है कि वो अच्छा होता है, मुस्तहसन है। इसीलिए उन्होंने ज़ुबान से भी कहना शुरू कर दिया कि या अल्लाह, इसको मैं फ़लाँ के लिए सवाब करता हूँ, उसको पहुँचा। ज़ुबान से कहना शुरू कर दिया, वरना तो आप जो अमल कर रहे हैं वो आपके वालिदैन को वैसे ही पहुँचता है। आप खुद बज़ाते खुद इसाले, यानी आप बज़ाते खुद अपने वालिदैन का सदक़े जारिया होते हैं, अगर आप नेक अमल कर रहे हैं तो आपके वैसे भी नेक अमाल का सवाब आपके वालिदैन को जाता है। तो ज़ुबान से कह देते होते हैं, तो इससे हमारे दिल को तसल्ली होती है, ये हमारे दिल को ले। इसी तरह नमाज की भी नियतें होती हैं, और बहुत सारी नियतें ज़ुबान से कहने की नहीं होती, आपको दिल भी पता है कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी होता है। तो इस तरह ये भी है कि हम लोग ज़ुबान से कह देते हैं कि इतना इतना पढ़ा है, या अल्लाह इसको कबूल फरमा, ताकि तसल्ली भी रहे। तो ये बाकी जो होता है ना, हमारे यहाँ सोयम होता है, या चालीसवां होता है, या जुम्मा होता है, वो सब इसाले सवाब के बहाने हैं। और लोगों को बस वो ताज़ियत करते हैं, या फिर बैठ के दुआ कर लेते हैं, या उनकी यादें हो जाती हैं, बस ऐसे उसी इसी के लिए जो है ना, वो ये चीज़ें सारी राइज होती हैं, और अब से नहीं है, अब शुरू से चली आ रही हैं और कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हम लोगों ने नमाजों के लिए वक्त को मुकर्रर कर दिया है। अब कब से शुरू हुआ है ये सिलसिला, क्या ये कब से शुरू हुआ, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये अच्छी चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि अब जैसे हमने जोहर की नमाज पढ़नी है, अभी 1:30 बजे जोहर की नमाज होगी। अब 1:30 बजे का तसव्वुर तो शुरू में नहीं था ना, बाद में पैदा हुआ। इसको मुताखिरीन बोलते हैं, कि बाद में ही ऐसा शुरू हो गया कि भाई जोहर की नमाज 1:30 बजे ही होती है, बस जुम्मा 1:30 बजे ही होता है। अब ये था नहीं पहले, लेकिन अब हमने कर दिया ऐसे। इसका फायदा क्या होता है कि सारे लोग जमा हो जाते हैं। अब हमने निकाह का दिन भी रख लिया भाई, कि फलां दिन निकाह होगा, कार्ड छपाए जाते हैं, वलीमे का दिन मुकर्रर किया जाता है। अब ये चीज़ें नहीं थी शुरू में, अब हो गई हैं। तो इसलिए कि सहूलत रहती है, लोग पहुंच जाते हैं। हमारे पास शादी हाल का टाइम कितना होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। अब ये वलीमा करना भी शरीयत है, सुन्नत रसूल है। जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, सवाब मिलता है इसका। निकाह का भी टाइम मुकर्रर करते हैं, जनाजे का टाइम मुकर्रर करते हैं, जनाजे का भाई 2 बजे जनाजा होगा। अब 2 बजे का, ये पहले नहीं था ऐसी चीज़ें, लेकिन अब हो गई है, चूंकि इससे घड़ी आ गई है, हमारे पास सहूलत है, सबको टाइम का पता लग जाता है, तो सब पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें हैं, और क्या है इसमें, कोई ऐसी इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। यानी ये जितना भी इसाले सवाब होता है, जितनी महाफिल होती हैं, ऐसी कोई भी इसमें अमल खिलाफ शरीयत नहीं है, कोई भी अमल खिलाफ शरीयत नहीं होता। तो जो खिलाफ शरीयत काम है उसको मना कर दो, बाकी इसाले सवाब के पीछे नहीं लग सकते, क्योंकि इसका इनकार करना कुरान की आयतों का इनकार हो जाएगा, हदीस का इनकार हो जाएगा, बहुत सारों का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
अब रसूल पाक रोजा रखते थे, हर पीर के दिन रोजा रखते थे, हर पीर के दिन रोजा रखते थे। हाँ, ये अब जुमेरात का रोजा भी ऐसे ही रखा। ऐसे और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो कि हमने टाइम मुकर्रर कर दिए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने खवातीन के लिए जुमेरात का टाइम मुकर्रर कर दिया था दर्स देने के लिए, और बहुत सारी चीजें। अच्छा जी। अच्छा, अगर खाने को सामने रख के उस पे ऐसे हाथ रखते हैं, ठीक है जी, और वो कहते हैं ये कहाँ से आया, ये हदीस में आपको सुनाता हूँ, ये हदीस पाक, ये खाने सामने रख कर बरकत की दुआ करना, ये ऐसी हदीस शरीफ है कि इसका कोई इनकार नहीं करता। और न सिर्फ अहादीस बल्कि तफासिर सब में ये वाक़या लिखे हुए हैं। मैं आपको कुछ इसारे सवाब पे ना कुछ अहादीस सुनाता हूँ, बड़ी खूबसूरत अहादीस है, बल्कि ये किताब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, आपको बहुत काम आएंगी। मेन थीम समझे, बाकी अमाल जो है ना वो आप अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक करें, इनकार ना करें किसी चीज का। इनकार 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 उस चीज का करें जिसका रसूलुल्लाह ने इनकार किया हो, या कुरान में इनकार हो, हदीस में इनकार हो, इस्लाम में कोई इनकार दिखाई दे आपको, तब इनकार करें। ऐसे नहीं कि लोगों के कहने, चूंकि ये लोग तो अपने अपने अकाबिर को लेके, अपने अपने मदरसों को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको देखिए, कुरान को देखिए, हदीस को देखिए, कोई आपको इनकार मिलता है तो तब आप चीजों को मना किया करें। बाकी ये है कि आप नहीं कर सकते ना करें, आप अपने वालिदैन को नहीं बख्शना चाहते, आप किसी मुसलमान को चीज़ें नहीं बख्शना चाहते, या आपका अकीदा ये है कि भाई किसी को सवाब पहुंचता नहीं है, तो ये आपका गुमराही का अकीदा है, ये कोई सही अकीदा नहीं है। अभी मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हदीस है। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत है, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम की। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन माता, जो फोत हो गया, व अलैहि सियामुन, और उस पे रोजे हों, कज़ा रोजे हों, स्वाम अन्हु वलियुहु, तो उसका वली उसकी तरफ से रोजा रखेगा। एक और रिवायत में ये है कि अगर उस फोत होने वाले पर किसी नजर का पूरा करना बाकी हो था, जो उसने नजर मानी थी, मन्नत मानी थी, तो उसे उसकी तरफ से उसका वली पूरा करेगा। मैं जल्दी से यह हदीस सुनाता हूँ आपको, जल्दी से, चूंकि हदीस बहुत ज्यादा है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी, एक आदमी ने, एक सुहाबी ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, रसूलुल्लाह इन्न उम्मी उफ्तुतिलत, उफ्तुलितत, कि मेरी जो वालिदा है उनका इंतकाल हो गया है, नफ्सुहा, एक मिनट देखो मैं क्या है, मेरी वालिदा अचानक फोत हो गई है, अचानक से फोत हो गई है, अल्लाह अकबर। वह अजुन्नुहा, और मैं गुमान करता हूँ, लो तकल्लमत, अगर वो बोल पाती कुछ, तो तसद्दक़त, तो वो सदका करती, यानी मुझे वो सदके का हुक्म देती, अगर वो कुछ बोल पाती तो, कुछ भी अगर बोल पाती तो मुझे वो जरूर कहती कि सदका करो, सदका करो। अच्छा जी, ये हर 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 अमीर आदमी का आखिर में यही उसका अंजाम होता है, वो सदके की तरफ आ जाता है। तो उसने क्या अर्ज किया, फहल लहा अजरुन इन तसद्दक़तु अनहा। अब देखिए ये हदीस सुने जरा, कि अगर मैं, देखिए क्या लिखा है, फहल लहा अजरुन, क्या उसको अजर मिलेगा, इन तसद्दक़तु अनहा, अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं, तो उसके नाम पे सदका करूं तो पहुंचेगा उसको सवाब। काल नअम, आपने फरमाया जी हाँ। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस शरीफ। और ये देखो मुस्लिम ने बाब क्या लिखा है, बाब यानी जो उसने हेडिंग लिखी है ना, उन्वान रखा है, ये भी अकीदा जाहिर करता है कि इमाम मुस्लिम का अकीदा क्या था। उन्होंने लिखा है कि वसूल सवाब सदक़ात इलल मय्यत, मय्यत को इसाल सवाब करना सदक़ात के जरिए से। अंदाजा करें आप कि ये कितना पक्का अकीदा है मुसलमानों का। और इसमें ये नए लोग आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, जो कि कब्रों को बुत कहते हैं और वालिदैन को जाहिल कहते हैं, और ये मट्टी में मिल गए हैं, दफा करो, ऐसे लोग आ गए हैं। तो आप कभी भी ऐसा न किया करें। तो ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस शरीफ है, ठीक है जी। अच्छा, एक और हदीस देखें जरा, बुखारी शरीफ की। फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं तर्जुमे पढ़ता हूँ चूंकि हदीस बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि कबीला कबीला था एक जुहैना के नाम से, उसकी एक औरत थी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, मेरी वालिदा ने हज की मन्नत मानी थी, लेकिन वो हज न कर सकी, यहाँ तक कि वो फोत हो गई, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? आपने फरमाया, हाँ, तुम उसकी तरफ से हज करो। भला बताओ तो, अगर तुम्हारी वालिदा पर कर्ज होता तो क्या तुम उसे अदा ना करती? बस अल्लाह ताला का हक अदा करो, क्योंकि वो ज्यादा हकदार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए।
तो अब देखा आपने, ये बुखारी और नसाई की हदीस शरीफ मैंने आपको सुनाई। ये वो बंदा फोत हो गया है लेकिन उसकी तरफ से हज कर रहे हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही रिवायत है कि हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हो गया, ठीक है, और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, हजरत साद बिन उबादा। तो वो बारगाह रिसालत में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है और मैं उस वक्त हाजिर नहीं था, अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका और खैरात करूं तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा? आपने फरमाया हाँ। हजरत साद अर्ज गुजार हुए कि मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरा मिखराफ, मेरा ये लफ्ज देखूं, मिखराफ, जो मेरा मिखराफ है, बाग है, बाग, मिखराफ पूरे हुदूद उसकी तरफ दीवार थी, फरमाया ये जो बाग है उनकी तरफ से मैंने सदका कर दिया है। ये ऐसे सदका करते थे, हमारे क्या सदकात हैं यार, हम तो पानी और हलवा रख के सदकात करते हैं, उसका भी लोग इनकार करते हैं, अंदाजा करें आप। कोई मीठा भी तकसीम नहीं कर सकते, ये तो पूरे पूरे बाग सदका करते थे अपनी माँ के नाम पे। और ये सच्चे पक्के मुसलमान थे, ये जो सहाबा कराम है, इनसे मैं अब क्या बताएंगे, जब इनकी, अगर इनका अमल जो है दुरुस्त नहीं है ना, तो फिर किसका अमल दुरुस्त होगा यार, मैं से समझ नहीं आती। ये इस इमाम बुखारी ने रिवायत किया इस हदीस शरीफ को। आपने कहा मेरा पूरा बाग में खराफ वो मेरी माँ के नाम पे सदका है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि एक शख्स ने एक बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा फोत हो चुकी है, अगर मैं उसकी तरफ से सदका दूं तो क्या वो उसे कोई नफा देगा? अब देखिए आपने, सदका नफा देगा मेरी वालिदा को? आपने फरमाया हाँ। उस आदमी ने अर्ज किया, मेरे पास एक बाग है, आप गवाह रहे हैं कि मैंने ये बाग उसकी तरफ से सदका कर दिया है। आप ये देख रहे हैं कि सुहाबा ये क्या है कि बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको गवाह बना रहा हूं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो इसाले सवाब करते हैं वो अपने पैगंबर को करते हैं। याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो है इसाले सवाब किया करें। वो हमारे लिए ऐसे ही दुआएं करते थे, हमारी तरफ से कुर्बानी करना इसकी वाज़ेह दलील है कि हमारी तरफ से कुर्बानी करते थे। तो हम में भी हमेशा अपनी सदकात खैरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले रखना चाहिए, उनके वसीले से ही तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए देखिए सुहाबा कह रहे हैं हम आपको गवाह बनाकर सदका कर रहे हैं अपनी माँ को, तो ये बहुत अच्छा वसीला है। आगे चलते हैं। हजरत साद से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उम्मे साद यानी मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, सो कौन सा सदका अफजल है? अब सदका का तो उस पर कोई डाउट नहीं रहा। उन्होंने पूछा क्या है कि मैं सदका कौन सा करूं, सबसे आला सदका करना चाहता हूं मैं। ये होना चाहिए बच्चों का अकीदा, और बच्चों का जो है मोहब्बत वालिदैन के साथ, कि उनका ख्याल हो वालिदैन का, कि वालिदैन अब मोहताज हैं कब्र में हमारे सदकात के, हमारी दुआओं के, हमारे तिलावत के। उनको इसाले सवाब, उनका अमालनामा बंद हो गया है, सिर्फ यही खुला है कि उनके बच्चे उनके लिए दुआ करें, सदका खैरात करें, नवाफिल पढ़ें। तो वो कहते हैं कौन सा सदका अफजल है, मुझे वो बताएं, सबसे अपनी माँ के लिए सबसे अफजल सदका करूंगा मैं। आपने फरमाया पानी, पानी, पानी कम है यहाँ पे, पानी का सदका दो। तो उन्होंने एक कुआं खुदवाया और उसके ऊपर कहा कि ये है उम्मे साद का कुआं, बेर उम्मे साद, ये मौजूद है, मैंने आपको ऐसे अर्ज किया। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, उनकी वालिदा फौत हो गई तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी वालिदा फौत हो गई है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका, अच्छा जी, तो उनकी तरफ से मैं क्या सदका करूं? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा कौन सा सदका बेहतर रहेगा? आपने फरमाया पानी पिलाना। तो उन्होंने एक कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, बस ये कुआं मदीना मुनव्वरा में साद या आले साद के पानी की सबील के नाम से मशहूर था। और आज भी आप अगर देखें ना कि ये सऊदी जो है, जितने भी पुराने, ये तो अभी इन लोगों को वहाबी बना रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं लोगों को। वैसे सऊदिया वालों का मक्का मदीना में अब सारे सुन्नी हैं, हम सबको जानते हैं, सारे सुन्नी हमारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हैं हमारे दोस्त, वो सारे सुन्नी हैं। ऊपर से उन्होंने जो बैठा दी है ना ये सुर्ख रुमाल वाले, ये हमारे मुल्कों से खरीदते हैं ये बंदे। ये ऐसी इनकी शक्लें, जिनकी मुर्दार किस्म की शक्लें होती है, लानत बरस रही होती है, ये सारे यहाँ बंगाल और ये इंडिया पाकिस्तान यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। उनके वो सारे पक्के सुन्नी है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब क्या करते हैं, जब किसी का किसी मुल्क में ना कुआं, पानी वगैरह खोदते हैं या कोई कुआं बनाते हैं, तो उसके ऊपर लिखते हैं आले, आले, आले फला, आले फला, आले फला की तरफ से ये सदका है। ये इसाले सवाब की किस्म होती है, यह है इसाले सवाब। और ये चला आ रहा है सहाबे कराम से।
इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद फोत हो गए हैं। अब जरा सुनिएगा, वालिद, पहले वालिदा कोई था, अब ये वालिद आ गए हैं। वालिद फोत हो गए हैं, उन्होंने माल छोड़ा है लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं की है। अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या ये सदका उनके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? आपने फरमाया हाँ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही तरीन हदीस पाक है और नसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया है कि मुर्दों को इसाले सवाब कर सकते हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि एक औरत हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा फौत हो गई हैं और उन पर 1 माह के रोजे वाजिब हैं, 1 माह के रोजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ अगर उस पर कुछ कर्ज होता तो क्या तुम उसकी तरफ से वो कर्ज अदा न करती? उस औरत ने कहा हाँ। आपने फरमाया बस अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि उसका कर्ज पहले अदा किया जाए, तो क्या करो, उसके रोजे जो हैं उसका फिदिया दो। इसी तरह हजरत बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो हुजूर अकरम की बारगाह अक़दस में बैठे हुए थे कि एक औरत आई और अर्ज किया, मैंने अपनी माँ को एक बांदी सदका में दी थी। ये वाक़या जरा सुनिएगा, मैंने अपनी माँ को एक खादिमा बांदी थी, सदका में दे दी थी। अब मेरी माँ फोत हो गई है। आप सल्लम ने फरमाया तुम्हें सवाब मिल गया और विरासत ने वो बांदी तुम्हें लौटा दी है। आप समझे बात को? ओहो, कि मैंने अपनी बांदी जो है वो मैंने अपने अपनी वालिदा की खिदमत के लिए उनको दे दी थी कि ये आप ले, सदका कर दी मैंने, ठीक है। अब वालिदा फोत हो गई हैं तो उस क्या करूं मैं उस बांदी का? वो बांदी का सवाब तो तुम्हें मिल गया है, आपने फरमाया, लेकिन अब जो विरासत मिलेगी तो वो बांदी तुम्हारे पास दोबारा आ जाएगी। ठीक हो गया। उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ पर 1 माह के रोजे भी बाकी थे, क्या मैं उसकी तरफ से रोजे रखूं? आपने फरमाया हाँ, उसकी तरफ से रोजे रखो। उसने अर्ज किया, मेरी माँ ने हज भी नहीं किया था, क्या मैं उसकी तरफ से हज भी अदा करूं? आपने फरमाया हाँ, उसकी तरफ से हज भी अदा करो, उसे इन सब अमाल का सवाब पहुंचेगा पहुंचेगा। और अभी तक हम ये अमाल करते रहते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक और भी रिवायत है, एक औरत ने हुजूर नबी करीम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरी बहन का इंतकाल हो गया है और उस पर 2 माह के रोजे बाकी हैं। आपने फरमाया अगर तेरी बहन पर कर्जा होता तो क्या तू अदा कर दी? उसने जवाब दिया क्यों नहीं? आपने फरमाया अल्लाह ताला का हक ज्यादा अदा करने के लायक है, वो कर्ज अदा करो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी एक और भी रिवायत है, ये भी सही हदीस है, सही इब्न हिब्बान में और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से रिवायत है कि एक आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरी बहन वफात पा चुकी है, उसने हज नहीं किया था, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकता हूँ? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उस पर कुछ कर्ज होता तो तुम यकीनन अदा करते, बस अल्लाह ताला वफा का ज्यादा हकदार है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक और हदीस पाक रिवायत है, एक औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, मेरे वालिद फोत हो गए हैं, उन्होंने हज अदा नहीं किया था। आपने फरमाया तू अपने वालिद की तरफ से हज कर ले। अब देखा ना, हज कर ले, अपने वालिद के नाम से हज कर ले। सुभान अल्लाह। मेरी जो नानी है ना, नानी, क्योंकि हमारे खानदान में अभी तक जो हमारे पास शजरा है ना, 350 साल से सिर्फ उलमाए कराम आ रहे हैं हमारे सिलसिलों में ना। यानी मेरे मेरे जो नाना थे वो भी आलिम थे, जो मेरे दादा थे वो भी आलिम थे, दोनों भाई थे, उनके वालिद भी आलिम थे, उनके वालिद भी आलिम थे, और हमारे मेरी नानी के दादी के जो वालिदैन थे वो भी उलमा थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सारे पूरा खानदान ही मौलवियों का है, सारा उलमा है और बड़े उलमा हैं। यानी पाकिस्तान के, अगर आप देखेंगे ना पश्तो तर्जुमा का लिखेंगे ना पाकिस्तान के, तो पहला तर्जुमा मेरे नाना जान ने लिखा है, और वो आप देखेंगे तो उनका नाम होगा, आपकी जो भी रिसर्च में देंगे ना पश्तो तर्जुमा तो उनका नाम आएगा, जुमा खान का। और अब फजल वदूद का, तफसीर वदूदी के नाम से, तफसीर वदूदी, बड़ा अच्छा तर्जुमा लिखते थे। उन्होंने तर्जुमा लिखा और दरमियान में ना समझाने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी किया। तो माशाल्लाह बड़े उलमा गुजरे थे। तो सही 350 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरी नानी ने क्या किया कि जो जो हमारी निगाह में जो ना हमारे ज़मानों के करीब के ज़माने का जो सबसे बड़ा था ना, जिसने कि अपने बच्चे को तालीम दी, उनके लिए एक हज किया। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। और फिर उनके बाद अपने वालिद के लिए भी किया, उसके बाद हमें भी करवाया। अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी नाना जान की सीट पे आ गया, तो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ, जुमा पढ़ाता हूँ या नमाजें पढ़ाता हूँ, दर्स देता हूँ। तो उन्होंने मुझे भी उम्रा करवाया कि आप तुम तो चलो जिंदा हो तो चलो उम्रा कर लो, उम्रा करवाया।
इस तरह ना वो अपने बेटे को भी, वो भी आलिम हैं, तो उनको भी, मेरे मामू को, उनको भी उम्रा करवाया, बल्कि हर साल करवाती रहती है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब उनका भी कितना हक है हमारे ऊपर, कि मैं अब नानी को मैं, अगर खुदा न खास्ता वो चली जाती हैं और सब ने जाना है, तो क्या मैं उनकी खातिर जो है वो उम्रा नहीं कर सकता उनके लिए? क्या उनकी खातिर मैं सदका खैरात नहीं करूंगा? क्या ये उनका कर्ज है मेरे ऊपर? तो मैं करूंगा, लाजिम बातें करूंगा। इसी तरह होता है, यही हम जैसे दुनिया में एक दूसरे के काम आते हैं, अपने माँ बाप के, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपना खून पसीने का कमाया हुआ अपने बच्चों को, बीवी को खिलाते हैं, इसी तरह मरने के बाद भी उनका हक बाकी रहता है। और उनका जो ग़िज़ा होती है वो यही होती है कि आप उनके लिए दुआ करो, इसाले सवाब करो कुछ उनको। तो जो छोड़ देते हैं वो वफा नहीं करते। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वफात पा जाए और उसके ज़िम्मे रमज़ान शरीफ के रोज़े बाकी हों, तो उसकी तरफ से हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। ठीक है जी, ये फिदिया के तौर पे है। एक और फरमाया, अब देखो वो फोत हो चुका है लेकिन सवाब पहुंचेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब कोई शख्स रमजान में बीमार हो जाए, फिर सेहतयाब ना हो बल्कि मर जाए, तो उसकी जानिब से खाना खिलाया जाए और उसके ऊपर कज़ा नहीं है, और अगर उसने नजर मानी हो तो उसका वली उसकी नजर पूरी करेगा। अब ये सारी हदीस देखिए, आपको अंदाजा हो सकता है कि इसाले सवाब का माना क्या होता है। अच्छा, हजरत हनश बयान करते हैं कि मैंने देखा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को कि दो दुम्बे कुर्बानी कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया, ये क्या है दो दुम्बे? उन्होंने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी तरफ से कुर्बानी करने की वसीयत फरमाई थी। चुनांचे उनके इरशाद आली के तहत मैं हमेशा एक कुर्बानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश करता हूँ और एक अपनी तरफ से करता हूँ। दो कुर्बानियां करनी, देखा आपने? इसी तरह जितने भी नेक लोग हैं ना, वो हमेशा दो करते हैं कुर्बानियां। इब्राहिम बिन सालिह बिन दिरहम का बयान है कि उन्होंने अपने वालिद माजिद को फरमाते हुए सुना, हम हज के इरादे से गए तो एक आदमी ने हमसे कहा, क्या तुम्हारे एक तरफ उबल्ला नामी बस्ती है? हमने कहा हाँ। उसने कहा, तुम में से कौन है जो मुझे इस बात की जमानत देता है कि मस्जिद उशार, अल मस्जिद अल अशार, ठीक है, अशार, उसमें दो रकात नमाज, अल्लाह अकबर, या चार रकातें पढ़ेगा मेरे लिए, और कहे कि इसका सवाब अबू हुरैरा के लिए है। मैंने अपने खलील हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, उन अल्लाह ताला क़यामत के रोज मस्जिद अशार से ऐसे शहीदों को उठाएगा कि शुहदाए बदर के साथ उनके सिवा कोई और खड़ा ना होगा। मस्जिद अशार, अब आप जरा थोड़ा सा सबर कर ले, मैं जरा मस्जिद अशार देखूं। मस्जिद अशार, वाह, ज़रा तो कर सकते हैं ना, क्या खूबसूरत है माशाअल्लाह। जो मस्जिद अशार में नमाज पढ़ेगा उसका जो है बदरी सुहाबा के साथ होंगे। क्या बात है, नसीब फरमा। तो उसका सवाब क्या है? कयामत के रोज मस्जिद अशार से ऐसे शहीदों को उठाएगा कि शुहदाए बदर के साथ उनके सिवा कोई और खड़ा नहीं होगा। यानी उनका जो हशर होगा वो शुहदाए बदर के साथ होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या ये एक सहाबी है, उन्होंने अर्ज किया, हाँ, कि आस बिन वाइल ने दौरे जाहिलियत में नजर मानी थी कि वो 100 ऊंटनियों के करीब की कुर्बानी करेगा, और हशाम बिन आस ने अपने बाप की तरफ से 50 ऊंटनियों को कुर्बानी की, तो क्या इसका सवाब मिलेगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप तौहीद को मानने वाला था और तुमने उसकी तरफ से रोजे रखे या सदका किया तो ये उसे नफा पहुंचाएंगे। इसको इमाम अहमद ने मुस्नद में रिवायत किया। अल्लाह अकबर। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया एक सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह, वही 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 दोबारा आ गई हदीस पाक, एक और किताब में है। अच्छा जी, एक और मैं चलता हूँ आगे। हजरत आता, हजरत सुफियान, हजरत जैद बिन असलम से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक आदमी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
क्या मैं अपने मरहूम बाप की तरफ से गुलाम आज़ाद कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ। इसको ये हदीस भी इमाम बैहक़ी इब्न शैबा ने रिवायत की है। इसी तरह अबू जाफ़र से मरवी है कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत अली शेर खुदा की वफ़ात के बाद उनकी तरफ से गुलाम आज़ाद किया करते थे। ये तरीक़ाकार हम ये अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीक़ेकार है, अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना और ग़ुलाम आज़ाद करना और नेकियों का सवाब उनको पहुँचाते रहना। कोई एक चीज़ नहीं है। अब देखो ना, ये ग़ुलाम आज़ाद करना और ये सारी चीज़ें करना हदीस में हर एक का नहीं आया। बस सवाब पहुँचाना है तो आप कोई भी नेकी का सवाब पहुँचा सकते हैं। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने वालिदैन की तरफ से हज किया या उनका कर्ज अदा किया, वो रोज़े क़यामत नेकोकारों के साथ उठाया जाएगा। अब इस हदीस शरीफ पे लोग सारे अमल करते हैं अपने वालिदैन के लिए। कौन ऐसा होगा बदनसीब जो कि उम्रा हज करे और अपने वालिदैन को भूल जाए, उनके लिए तवाफ न करे, उनके लिए उम्रा ना करे। ज़रूर करना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपने वालिदैन के लिए हज करता है तो उसका सवाब तो उसका और उसके वालिदैन का हज कबूल कर लिया जाता है। आसमानों में उनकी अरवाह को बशारतें दी जाती हैं और उस बंदे को अल्लाह ताला के नज़दीक नेकोकार लिखा जाता है। इसलिए हम दुआ में कहते हैं, या अल्लाह उनकी रूह को खुश फरमा। ये है वो कि उनकी अरवाह को बशारतें दी जाती हैं कि फ़लाँ ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, फ़लाँ चीज़ का, फ़लाँ चीज़ का। तो ये जिन लोगों का मामूल है ना इसाले सवाब करना, मैं आपको 100% यकीन से बता देता हूँ कि अगर वो छोड़ देंगे ना, यकदम से रूह आके उनको ना शिकायत करेगी ख्वाब में, यकदम से फौरन आके शिकायत करेंगे कि आपने ना अभी कुछ भेजा नहीं, सबके आ गए तोहफे, तुमने नहीं भेजा। लेकिन जो नहीं करते ना, उनको नहीं आते, सिरे से नहीं आते। ये बदनसीबी और महरूमी की इंतहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया जिसके हाथ, पैर और आंखें सियाह हों। सो कुर्बानी करने के लिए ऐसा मेंढा लाया गया। अब देखो ना, वो कहते हैं ना काला बकरा, वो ये है। कहते हैं कि लाया गया, आप फरमाया, ए आयशा छुरी लाओ। फिर फरमाया, इसको पत्थर से तेज करो, छुरी को। मैंने उसको तेज किया। फिर आपने छुरी ली, मेंढे को पकड़ा और उसको लिटाया और ज़िबा करने लग गए। फिर फरमाया, अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह, मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से इसको कबूल फरमा। फिर उसकी कुर्बानी की। इसको इमाम मुस्लिम ने, अबू दाऊद ने, इमाम अहमद ने रिवायत किया। आप समझ सकते हैं इस हदीस शरीफ की अहमियत, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये सही हदीस शरीफ है। अंदाजा करें आप, ये जो हम नाम लेते हैं ना तफसील के साथ। अब रसूल पाक ने तो यही कहा ना कि मेरी तरफ से मोहम्मद और आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सब की तरफ से कबूल फरमा। हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि हम कहें, या अल्लाह, रसूलुल्लाह, सबसे पहले खास तौर पर रसूलुल्लाह को इसका सवाब पहुंचा और रसूलुल्लाह की खातिर उनके 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 वसीले से पैगंबरों को, तमाम पैगंबरों को, उनके घर वालों को, उनके सहाबा कराम को जिन्होंने सख्ती में उनका साथ दिया, और रसूलुल्लाह के घर वालों को, उनके सहाबा को, और फिर तमाम ताबीन, तबे ताबीन, सबको, नेकोकारों को, सारी उम्मत को रसूलुल्लाह का इसका सवाब पहुंचा। और खास उल खास इसका सवाब मेरे वालिदैन को, मेरे अब्बू को, मेरी अम्मी को, मेरे दादा को, मेरे नाना को, मेरी नानी, मेरी दादी को इसका सवाब पहुंचा। तो ये आप हम अपने दिल की खुशी के लिए ऐसा करते होते हैं। वैसे तो ये कितना आसान है। देखिए रसूल पाक ने खुद फरमाया इसको, इन चीज़ों को। और ये सही हदीस शरीफ है इमाम मुस्लिम की। और यही अकीदा चला आ रहा है। कितनी अहादीस आपको सुनाई है ना, ये सारा अभी आगे आगे सुनाता हूँ आपको, आगे सुनते जाएंगे। ये सही हदीस शरीफ थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया, इन दोनों मुर्दों को अजाब दिया जा रहा है और उन्हें किसी बड़े गुनाह के सबब अजाब नहीं दिया जा रहा। इनमें से एक तो अपने पेशाब से एहतियात नहीं करता था, जबकि दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आपने एक तर टहनी मंगवाई और चीर कर उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा एक कब्र पर और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर नस्ब कर दिया। फिर फरमाया, जब तक ये खुश्क न होंगे उनके अजाब में तखफीफ रहेगी। और ये हदीस शरीफ बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। बाकी किताबों के नाम तो छोड़ दें। इस हदीस को कहाँ रखेंगे आप लोग? ये है वो हदीस शरीफ जिसकी वजह से
कब्रों पर फूल डाले जाते हैं, जो सेहरा डालते हैं, फूल डालते हैं, खुशनसीब लोगों के ऊपर डाला जाता है। जो लोग नहीं मानते अल्लाह ताला उनको देता भी नहीं है। जो लोग इसाले सवाब को नहीं मानते, तिलावत को नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको देता भी नहीं है। जो मानते हैं उन्हीं को देता है बस। तो कब्रों को, ये देखो, ये हदीस शरीफ मुत्तफक अलैह हदीस पाक है कि तर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। जब तक कोई टहनी, कोई फूल, कोई पत्ता सब्ज रहता है, वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है और उसका सवाब उस मैयत को पहुंचता है जो उस कब्र में होता है। इसीलिए कब्रों पे सब्जे को उगाया जाता है। लेकिन सब्जा कब उगेगा? साल में उगेगा, जब बहार आएगी 5 महीने बाद। मुर्दे पे तो अभी इम्तिहान है, उसके सवाल और जवाब और तन्हाई और वहशत और वहां जो जो उसके साथ पेश आ रहा है वो तो अभी पेश आ रहा है। तो इसलिए उसका फौरन एहतमाम करना चाहिए उसके साथ। और हमेशा उसके कब्र पे जो है फूल होने चाहिए, मुसलसल होने चाहिए। ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो कि हर साल, पूरा साल, हर महीने में जो है वो तर रहें और वो सब्ज रहें, ऐसे लगाने चाहिए। तो ये हदीस कहाँ जाएगी फिर अगर ये चीज नहीं होगी? तो ये देखो, इसाल इसाल सवाब का अकीदा यहाँ से निकलता होता है। और ये फूल, कब्र पे फूल डालना, ये यहाँ से निकलता है। इसके अलावा और कोई आपको चीज नहीं मिलेगी। और ये हदीस शरीफ बुखारी की भी है, आपको मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। नसाई की ये हदीस शरीफ है। इसको इब्न हब्बान ने रिवायत किया, इमाम अहमद ने रिवायत किया, सब किताबों ने, बहुत सारी किताबें। अल्लाह अकबर। बस ये हदीस शरीफ बार बार वो लेके आ रहे हैं और मुख्तलिफ रिवायात लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। अब जरा एक और देखें, ये देखें कब्र पे, जरा एक और चीज देखें, हैरान हो जाएंगे आपके कब्र पे और क्या होता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि जब हजरत साद बिन मुआज फोत हो गए, इस हदीस पाक में दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जब वो फोत हो गए तो हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी तरफ गए। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली तो उन्हें कब्र में रख दिया गया और कब्र को बराबर कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह फरमाई, तस्बीह। बस हमने भी तवील तस्बीह की। अब देख रहे हैं आप, जिक्र करना, कब्र पे बैठ के, कब्र पे बैठ के तस्बीह की, और हमने भी तस्बीह की। बस हमने भी तवील तस्बीह की। फिर आपने तकबीर कही, अल्लाह अकबर। पहले सुबहान अल्लाह का जिक्र था, उसके बाद फिर शुरू कर दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने भी तकबीर कही। इस पर अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आपने तस्बीह और तकबीर क्यों फरमाई? इरशाद हुआ, इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, हमने तस्बीह और तकबीर की, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इस पर फराखी फरमा दी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप कब सब्जा उगेगा? अभी आप, जरूरत है तुम्हारे मुर्दे को, अभी जरूरत है तुम्हारे कब्र में। आपको नहीं पता कि जैसे ही लोग लौटते हैं तो वो मैयत को बिठा दिया जाता है सवाल और जवाब के लिए फौरन। और ये और हदीस में कितना आता है कि उसके बाद वो किसी में 7 दिन के लिए आता है, किसी में 40 दिन तक कब्र कब्र में वो अजनबी रहता है, अजनबी। इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए, हमें मुसलसल मदद करनी चाहिए कि हम उसकी मदद करें इसाले सवाब करते से। और ये अभी बहुत सारी हदीस सही रहती हैं। अब ये देखें ना, ये साद बिन मुआज, इनकी वजह भी लिखी गई है कि ये अपनी बीवी के साथ सख्ती करते थे, इनकी वजह भी आई हुई है। और ये हदीस शरीफ भी आपने देख ली, क्या रसूल पाक ने जिक्र किया बाकायदा तौर पे बैठ के। अब ये हदीस शरीफ आप कहाँ लेके जाएंगे? जो सबसे मशहूर हदीस पाक हमारे सामने है, आपको सबको पता है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। उनका अजर उसे बराबर मिलता रहता है। मतलब, एक वो सदका जिसका नफा जारी रहे। ये जो हम कहते हैं सदके जारिया, ये है इसाले सवाब की सबसे बड़ी दलील, कि सदके जारिया होता ही ये है कि आपके मरने के बाद आपको सवाब मिले, आपकी रूह को सवाब मिले। एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। दूसरा है वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ चीजें, आपको कुरान समझ आ जाए, हदीस, कोई मसला समझ आ गया है, उसका फायदा जब तक रहेगा मुझे इसका सवाब पहुंचता रहेगा। और यही हमारा सरमाया है, हमारा कुल। और तीसरी चीज जो है वो है नेक औलाद, जो किसी किसी को नसीब होगी। वरना अब तो अकीदे तबाह बर्बाद कर दिए इन जालिमों ने, कि अब तो बच्चे जो है अपने वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं करते, ना ही कुरान पढ़ते हैं, ना ही उनकी कब्रों पे जाते हैं, और कब्रों को वीरान कर दिया उनके। तो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करते रहे अपने वालिदैन के लिए। और आपको मैंने इतनी अहादीस सुनाई है कि वो कैसे सहाबा कराम थे जो कि ये सारे करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
लक्किनू मौताकुम, अपने मरने वालों को ला इलाहा की तलकीन करो। अब ये तलकीन मुर्दे को करेंगे या जिंदा है वो मर रहा है तो तलकीन करें? इसको फरमाया कि अम्मा अल्लामा इब्न अबी दीन शामी ने फरमाया है कि अहले सुन्नत के नज़दीक इस हदीस का जो है ना कि लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह महमूलुन अला हकीकतिही लिअन्न अल्लाह ताला युहयीही अला मा जाअत बिही अल आसार। कहते हैं हदीस में, चूंकि कसीरा हदीस में ये आया हुआ है कि मुर्दे को जिंदा किया जाता है, इसलिए कब्र में रखने के बाद, कब्र बंद करने के बाद फिर वहां खड़े होकर तलकीन करना है कि तुम्हें ला इलाहा याद करो, तुम ला इलाहा पढ़ने वाले थे। हम तलकीन करते हैं मैयत को, इसको तलकीन कहते हैं, मुर्दे को तलकीन करना। कि कब्र पे खड़े होकर ना आप उसको तलकीन करते हैं कि याद करो फला इब्ने फला। उसका पूरा तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा आपको, अगर कोई करना चाहेगा तो। कि वो तलकीन करते हैं कि तुम्हें याद करो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले थे, और तुम्हें कुरान तुम्हारा कि तुम्हारी किताब है, रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे रसूल हैं, और ये सारा दीन तुम्हारा इस्लाम है, याद करो याद करो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं। तो यही हमारा जो है वो चला आ रहा है, मामूल है हमारा, क्योंकि तदफीन के बाद जिंदगी लौटा दी गई है। वाज़े आसार और रिवायात मौजूद हैं इस पे। फरमाया हज़रत मोहम्मद बिन अल-मुंकदर, मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की वफ़ात के वक़्त उनके पास गया तो मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह पर सलाम भेजो। अब देखा आपने क्या खूबसूरत अकीदा था उनका। ये देखो इमाम इब्न माजा ने सियाह सित्ता की हदीस शरीफ है, ये मोहम्मद बिन अल-मुनकदिर है। कहते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, उनका हालत नज़ा का वक़्त था, यानी वो इंतकाल फरमाने लगे थे। तो मैंने उनसे पता है क्या कहा कि मेरा रसूल रसूलुल्लाह पर पहुंचा दे, मेरा सलाम पहुंचा दे रसूलुल्लाह को, मेरा सलाम पहुंचा दे रसूलुल्लाह को। अंदाजा करें, अब ये ताबीन है, ताबीन और सुहाबा से कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में फरमाया कि लक्किनू मौताकुम, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तलकीन करो बार बार। कालू या रसूलल्लाह कैफल अहया, अगर जिंदा है तो? फरमाया अजवद व अजवद, ये तो बहुत खूब है, बहुत खूब है, बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। बस इस तरह की बहुत सारी अहादीस हैं। और ये थोड़ी नहीं, अभी तो आधी किताब हुई है, इसके आधी किताब अभी रहती है, और अकीदा नीचे लिखा हुआ है हमारे आइम्मा का। अभी तो ये मैं सिर्फ हदीस सुनाई है ना, इन हदीस से मतलब क्या लिया है ताबीइन ने, सुहाबा ने, ताबीइन तबे ताबीइन ने, वो इसके नीचे लिखा हुआ है, इस किताब के आखिर में लिखा हुआ है। तो ये किताब शायद मैंने पहले भी 2 दफा पढ़ी है, लेकिन हम यहीं तक पहुंच जाते हैं तो घंटा खत्म हो जाता है, तो ये हम कभी पढ़ नहीं पाते। लेकिन चले, मैं किताब आपको दोबारा भी शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, और आपको फ़ायदा होगा इससे। आपको ही फ़ायदा होगा, बाद में काम आएंगी, ये सारी चीज़ें बाद में काम आएंगी। बहुत शुक्रिया अहबाब, आपने साथ दिया, आपने समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो हमारे भी नसीब ऐसे हों कि कोई सदक़े जारिया हमारी तरफ से भी हो, ताकि वो हमारे बाद मरने के हमारे काम भी आए, और हमारी औलाद भी अल्लाह ताला नेक फरमाए कि वो नेक हों और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखे। इसके लिए हमें नेक होना पड़ेगा, हमें अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करना होगा, अपने असातिज़ा के लिए इसाले सवाब करना होगा हमें, तभी हमारे बच्चे भी हमें याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आम मुसलमान भी हमें याद रखेंगे, आम मुसलमान भी। अल्लाह ताला करे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अल्लाह ताला इसमें अगर कोई सहवा हो गई हो, कोई कमी बेशी हो गई, गला पूरा फरमाए, अपनी शान के लायक हमसे कबूल फरमाए। इसके सदक़े से हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को कुशादा फरमाए, और उनको जन्नत का बागीचा बनाए। अल्लाह ताला सबको, हम सबको, हम सबका खातिमा बिल ईमान इस कलमे के साथ फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।